remaining part of the past paper that we started Winter 24 Paper 1 Variant 2. Winter 24 Paper 1 Variant 2, इसका मैंने आपको सॉल्व भेजा भी है अभी। डिस्कशन करते हुए जाते हैं एंड तक। आज ये कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर फाइलिंग करेंगे पेपर 2 की, जो लास्ट एक चीज रह गई है, फिर पेपर 2 के भी ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। Negative binary integer needs to be stored in a register in the computer. तो negative binary जब आप स्टोर करते हैं, give the type of the number system that can be used to represent negative number. नेगेटिव नंबर को आप कैसे स्टोर करते हैं वो कहलाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट काफी दिन हो गए किए हुए, कैसे करते थे इसको याद दिलाता हुआ चाहता हूँ मैं आपको, और अच्छा है थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। आपके पास एग्जामिनर आपको देगा 8 बॉक्सेस or maybe more than that. I'm giving you 8 boxes. The last bit is called MSB bit, this is called the sign bit. और एग्जामिनर कहता है कि उसको -5 स्टोर करना है या -5 स्टोर करना है। -5 आप स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली जब तक आप +5 स्टोर ना कर लें। तो +5 स्टोर करने के लिए ये करना पड़ेगा, और लास्ट बिट जो साइन बिट वाली है इसमें 0 लगा दें। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, डबल करते जाए। एवरी बिट हैज अ वेट, so 1 2 4, and you know that you multiply each number by 2, multiply by 2 like that. So ये 5 का इक्वलेंट है +5। साइन बिट में जब 0 होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, जब ये 1 होता है तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं सर ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइन बिट 0 आप बोल रहे हैं पॉजिटिव है, साइन बिट 1 आप कह रहे हैं नेगेटिव है, तो सर हम तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नो माय डियर, इट्स नॉट दैट सिंपल। ये इतना सिंपल नहीं है कि आप ये 1 करें तो नेगेटिव हो जाए, नहीं। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। इसके दो अलग अलग मेथड है, एक मेथड स्लाइटली लॉन्गर है, एक मेथड शॉर्टेस्ट मेथड है। पहले लॉन्गर मेथड को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, वो था वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते थे, सारे वंस को 0 करते थे, जीरोस को 1 कर देते थे, फ्लिप द नंबर्स। तो ये 1 है तो विल राइट 0 1 0 एंड ऑल ऑफ देम 1। फिर हम करते थे टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट में हमने करना होता है +1 इन द एंड, तो प्लस करना होता है 1 इन द एंड, या आखिर में हमने +1 करना है। तो 0 + 1 हो गया 1, बाकी के नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है तो विल कॉपी देम डाउन एज इट इज। तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑल वंस लाइक दैट। ठीक है, ये जो आंसर आया ना ये होगा -5 का इक्विवेलेंट, ये है, दिस इज गोना बी -5, ये -5 है। चले अब -7 करके दिखाएं कैसे करेंगे आप, बोलिए। Into binary. Turn all first three into binary with write 3 1 and all zeros, yeah, and then flip the numbers. So we're gonna write what? 0 0 0 and then the rest one. Very good. 0 0 0 and the rest of them 1, and then do +1. So we'll write 1 here and 0 here, 0 here. Rest of the number can be copied as it is. Just one more number. What if the number is 16? Achha, this was equivalent to 7, so this is equivalent to -7 now. What if I'm changing the number again? What if the number is 16? 16 को -16 करना है. How would you do that? 16 में Well, put 16 as 1 and then the rest are zeros and flip the numbers and add 1. flip the number and add 1. So 1 1 1 1 1 and then 0 and then all ones and then add 1. Up now this addition is going to be a bit complicated. That's what I wanted to know, whether you know how to do this or not. 1 plus 1 is what? 0 carry 1. You're right, 0 and carry 1. And this is again 1 plus 1, 0 and carry 1. This is again double 1, so 0 and carry 1.
This is again double one, so 0 and carry 1. Now you got 1 and 0. 1 and 0 is going to be 1, and then this 1, 1, 1, 1 can be copied like that. So here you go. This is the equivalent of minus 16. Now I'll talk about the shortest possible method, the shortest way of doing the same thing. How would you do that? So let's make similar number of boxes and we are finding out equivalent of minus 16 quickly. How would you do that? Minus 16. आप कॉपी करते हैं नंबर को from right to left. कॉपी करो. Just copy them until you get 1. Until you get 1. Now you have 1 here. Copy till the number 1 is there. And flip the rest of the numbers. Flip the rest of the numbers. So ये 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. And that's done. That's done. Match your answer. Minus 16 here and minus 16 here. Check. Let's do one more sum using this method. What if the number is 21 and we're going to find out minus 21? So 1, make it double, multiply by 2. 21 meaning what? 16 plus 4, 20 and 1, 21. I said copy the numbers until you get 1. What will you do? When you copy the number, the first number is 1. First number is 1. So you end it here. Copy it until you get 1. So you got 1. Stop it here. And then flip the rest of the numbers. So there's going to be 1. ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. And then 1 and 1. Like that. So इस तरह ये minus 21 हो जाएगा. Got it? So giving you a screenshot of this. Also, this method is an easier method. Examiner is never bothered with what method you are following. Choice is yours. You can follow any method you like. तो आप कोई से भी मेथड ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए फॉलो करते हैं. A student has a smart watch. The smart watch has a built-in input output. Identify two input and input devices that can be built into the smart watch. स्मार्ट वॉच में स्क्रीन भी होती है, माइक्रोफोन भी होता है, बटन्स भी होते हैं, आजकल तो कैमरा भी होता है और सेंसर भी होते हैं. सेंसर ऐसे भी वॉचेस हैं जो आपके जब आप वॉक करते हैं तो आपके स्टेप्स को भी काउंट कर सकते हैं. आइडेंटिफाई वन आउटपुट डिवाइस दैट कैन बी बिल्ट इनटू अ स्मार्ट वॉच. तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट स्क्रीन पे भी आते हैं, उसमें स्मॉल एलईडी बल्ब्स हो सकते हैं, स्मॉल स्पीकर्स हो सकते हैं और एक्चुएटर्स होते हैं. एक्चुएटर टू टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन थिंग्स. जैसे कि पर्टिकुलर टाइम पर अलार्म खुद ही ऑन हो जाए, खुद ही ऑफ हो जाए, लाइक दैट. इसके बाद द स्मार्ट वॉच हैज रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी स्मार्ट वॉच में क्यों होती है? इसमें बायोस होती है, बूटस्ट्रैप लोडर होता है. रोम के अंदर तो यही होता है. टू हेल्प स्मार्ट स्टार्टअप द स्मार्ट वॉच, यानी जब भी आप स्मार्ट वॉच को स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो इस रोम के अंदर होंगी. रोम कंप्यूटर में भी होती है, तो उसमें ये दो चीजें होती हैं. कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को आप रोम भी कह, रोम एक मेमोरी होती है, वो चेंजेबल नहीं होती है, तो वो कहलाती है रीड ओनली मेमोरी. और उसको आप कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. एग्जामिनर पूछता है व्हाट यू हैव इन इट, तो आप लिखते हैं बायोस एंड बूटस्ट्रैप होता है इसमें. इसी तरह किसी भी डिवाइस में जब रोम होती है तो रोम में वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसको आप बार बार चेंज नहीं करते हैं, या जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको आप कहते हैं फर्मवेयर. फर्मवेयर का मतलब है ऐड इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मशीन. So for example, there is a toy, there is a car. So in that car, inside the memory of the car, songs have been written. So when you turn on that car, this car will start moving and that song will start playing also. So this can be added up into the firmware. तो वो firmware में जो आप एक मर्तबा लिखते हैं वो जिंदगी भर तक रहता है, या जब तक वो टॉय टूट नहीं जाता जब तक रहेगा. नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब कभी इरेज नहीं होता, परमानेंटली स्टोर हो जाता है. इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन इसमें वो होती हैं जो चेंज नहीं होती है बार बार. ठीक है, दिस वाज इजी स्टफ.
स्मार्ट वॉच में यूजेस द टेक्स्ट मैसेज एप्लीकेशन दैट रिसीव डेटा फ्रॉम द क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि गूगल वगैरह से जो है वो डेटा रिसीव कर रहे हैं और टेक्स्ट मैसेज के एप्लीकेशन में डेटा आएगा। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या चीज़ है? क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल के सर्वर्स होते हैं, मैंने आपका सारा डेटा अपने सर्वर्स पे यहाँ रखा हुआ है, मैंने अपने सारे पास पेपर्स वगैरह नेट ड्राइव पे रखे हैं और आपको लिंक दिए हैं, अपने लेक्चर्स भी रखे हैं, लिंक दिए हुए हैं। तो ये क्या है? गूगल के सर्वर्स हैं। अब गूगल का तो एक सर्वर नहीं है, गूगल के ये मल्टीपल सर्वर्स हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, इनके कई सर्वर हैं। अब हो सकता है इसमें पाकिस्तान के लिए ये सर्वर हो, ये पाकिस्तान के लिए है, पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक सर्वर से तो काम नहीं चलेगा। प्लस ये है कि पाकिस्तान का बैकअप सर्वर भी होगा, बैकअप सर्वर फॉर पाकिस्तान। फॉर सम रीजन किसी भी वक्त अगर ये सर्वर पाकिस्तान वाला डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, ये एक्सेसिबल हो जाता है, दिस कैन बी एक्सेस, तो दिस गिव सर्विसेज टू द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इसकी जगह ले लेता है और या फिर इसकी प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड को सर्विसेज देगा। तो व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज? इंटरनेट पे सर्वर्स होते हैं, रिमोट लोकेशन पे आप जो है उनका हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, उनकी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, उस पर अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो गूगल एक थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी का सर्वर यूज करके आप वहाँ अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं और वहीं से डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट की मदद से। 24/7 ये एक्सेसिबल होगा, इसका बेनिफिट होगा, कहीं से भी होगा, फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी होगा, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, बट योर डेटा विल नॉट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। कहते तो हैं कॉन्फिडेंशियल के, गूगल वाले तो खोल के नहीं देखते हैं, या आप अपना जीमेल अकाउंट होता है या आप अपना गूगल पे अकाउंट खोलते हैं, ओपन करते हैं, फ्री अकाउंट होता है, तो लेकिन गूगल अगर चाहे तो वहाँ के स्टाफ अगर चाहे तो वहाँ के जो एडमिन के लोग हैं वो देख सकते हैं। सो टू बेनिफिट्स ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग द क्लाउड स्टोरेज। नो नीड टू मेंटेन दी हार्डवेयर, आपको खुद मेंटेन नहीं करना, आपको खुद सर्विस नहीं करनी पड़ेगी, खुद खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद वायरस से नहीं बचाना पड़ेगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबल अब हो गई है थर्ड पार्टी यानी गूगल की। गूगल खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो हार्डवेयर भी मेंटेन करे, फास्टर हार्डवेयर लेकर आए, फिर उसकी रिसोर्सेज को वो बढ़ाए, कैपेसिटी को या कम करे, वो जैसे जैसे डिमांड यूजर की तरफ से आता है वैसे वैसे वो अपने इंक्रीज करते रहते हैं। मैंने 2 टीवी खरीदा है उनसे, पर ईयर में उनको सब्सक्रिप्शन पे करता हूँ, आगे जाके मुझे 4 टीवी चाहिए होगा तो आई ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन टू इंक्रीज दैट कोटा। So you can have unlimited access also. Choice is yours. No need to worry about running out of storage space. तो आपका स्पेस खत्म नहीं होता। और कैन सेव द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर अगर खरीदने जाएंगे तो फॉर एग्जांपल ये जो 4 टीबी की हार्ड ड्राइव होती है ये कॉस्ट करती है, सपोज करते हैं 40,000, लेकिन 4 टीबी अगर आप गूगल से लेंगे तो ये आपको ईयरली कॉस्ट करेगा फॉर एग्जांपल 15,000। तो आपका जो है पैसा कुछ बच जाएगा, साल की सब्सक्रिप्शन होगी। वॉच कैन रिमेन, आप उसको जो है स्मॉल साइज होता है उसको आप देखते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ आप उसको एक्सेस करते रहते हैं। कॉस्ट शुरू में लोअर होती है, आगे जाके जितना ज़्यादा ईयरली सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, खर्चा तो आपका होगा, ईयरली खर्चा होता है। कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज और फ्रॉम एनी डिवाइस, दुनिया में बैठ के कहीं से भी किसी भी लैपटॉप से आप एक्सेस कर सकते हैं। इफ द वॉच ब्रेक्स इफ डेटा इज लॉस इज स्टिल अवेलेबल। आप डेटा अभी देख रहे थे अपने कंप्यूटर पे और आपके घर का लाइट चली गई है या इंटरनेट डाउन हो गया है तो घबराने की बात नहीं है, डेटा आपका फिर एक्सेसिबल होगा क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में था ही नहीं, वो तो आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे थे, थर्ड पार्टी के पास था। गॉट इट? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द स्मार्ट वॉच ओनली डिस्प्लेज द टाइम एंड द टेक्स्ट मैसेज। A student incorrectly describes this smartwatch as a general purpose computer. जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होता है जो मल्टीपल काम करे, स्टूडेंट ने ये इनकरेक्टली डिस्क्राइब कर दिया है। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन जो है वो इनकरेक्ट क्यों है कि ये स्मार्ट वॉच जनरल पर्पस
कंप्यूटर है। नहीं जी, ये जनरल पर्पस नहीं है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है क्यों नहीं है, वजह क्या है। जनरल पर्पस तो कंप्यूटर होता है दैट परफॉर्म मल्टीपल जॉब्स फॉर यू, और जो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, याद रखो, जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, EMBEDD, एम्बेडेड वो होते हैं जो हाउस होल्ड आइटम में इस्तेमाल होते हैं। जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपकी डिजिटल वॉशिंग मशीन है, तो डिजिटल वॉच है, तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं, और ये डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड टू डू वन थिंग, टू डू वन थिंग। ये एक काम करते हैं आप, इससे कोई एक जॉब के लिए होता है। जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े वॉश करते हैं या ड्राई करते हैं, कुकिंग तो नहीं कर सकते उसमें आप। कुकिंग करना है तो माइक्रोवेव लेना पड़ेगा। इसमें भी इन कंप्यूटर में, एम्बेडेड कंप्यूटर में भी प्रोसेसर होता है, बट दिस प्रोसेसर इज नॉट द वन यू हैव इन योर लैपटॉप। ये जो प्रोसेसर होता है, ये एम्बेडेड प्रोसेसर कहलाते हैं। एम्बेडेड का मतलब ये है कि दे आर मेड फॉर वन पर्पस, मेड फॉर वन जॉब, मेड टू डील विद वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब। एक काम के लिए होते हैं। द watch can only perform a dedicated unlimited function task. A general purpose computer perform multiple tasks. तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है आपका। जबकि वॉच में तो आप सिर्फ टाइम देखते हैं। तो वॉच में जो भी एम्बेडेड होते हैं, लाइक आई सेड, कि वो एक काम करते हैं, डू वन थिंग, तो इसीलिए इसमें आप लिमिटेड काम करते हैं, डू वन थिंग। जनरल पर्पस में आप मल्टीपल काम करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से होते हैं? यू कैन नॉट प्लग इन अदर डिवाइसेस विद देम। तो आप घर की दूसरी या कीबोर्ड माउस वगैरह एम्बेडेड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते वॉच के साथ। तो यू कैन नॉट रीप्रोग्राम द स्मार्ट वॉच, उसको आप रीप्रोग्राम भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर और एप्स इन इट, दूसरे सॉफ्टवेयर भी उसमें आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। And it would have only one microprocessor in it. It would not have a CPU। वो प्रोसेसर इसके स्पेसिफिक होते हैं, कंप्यूटर वाले प्रोसेसर नहीं होते हैं। आई होप यू गॉट दैट। फिर आ जाते हैं, बार कोड स्कैनिंग सिस्टम यूजेस अ चेक डिजिट टू चेक फॉर एरर्स इन डेटा ऑन इनपुट। जो बार कोड होते हैं, बार कोड आप यूज करते हैं चेक डिजिट के लिए, चेक डिजिट एरर्स के लिए यूज करते हैं हम। और चेक डिजिट जो, एक्सप्लेन हाउ द बारकोड स्कैनिंग सिस्टम ऑपरेट्स टू चेक फॉर एरर्स, ये कैसे काम करता है। अब आई थिंक इसकी मुझे आपको एग्जांपल देनी चाहिए चेक डिजिट की। लेट मी चेक, चेक डिजिट। I'll have to search for it, just a second. Let me get it from somewhere else. 16 security. My students there. There you go. चेक डिजिट क्या होता है? दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, मैंने दो एग्जाम्पल दी हुई है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 हम फॉलो करते हैं जब आपको कैलकुलेट करना हो चेक डिजिट। एग्जाम्पल नंबर 2 फॉलो करते हैं जब आपको करेक्टनेस चेक करनी हो। दो अलग अलग बातें हैं, एक कैलकुलेट करने के लिए और एक से करेक्टनेस चेक कर रहे हैं कि ठीक है चेक डिजिट या गलत है, यानी वेरीफाई कर रहे हैं। इस मेथड को आप वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे। दिस इज टू वेरीफाई। जस्ट अ सेकंड, हैंग ऑन। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये कहता है टू कैलकुलेट द चेक डिजिट फॉर द ISBN नंबर। तो यहाँ पर इसने ISBN नंबर दिया। ISBN नंबर होता है इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जो है
It's the place where the check digit would come in future. तो check digit यहाँ पर आएगा. आपने क्या करना होता है इसके अंदर, आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं चेक डिजिट कैलकुलेट करने के लिए. चेक डिजिट इसी नंबर से कैलकुलेट होता है, इसी नंबर को आप यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए. पहला स्टेप ये है कि जो नंबर प्रोवाइडेड है उसको आप यहाँ कॉपी कीजिए एज इट इज, और उसके ऊपर आपने राइट साइड से पोजीशन डाल दी है. जैसे दिस क्वेश्चन मार्क इज एट पोजीशन नंबर 1, दिस 2 इज एट पोजीशन नंबर 2, 8 जो है पोजीशन 3 है. इस तरह पोजीशन डाल दी सारी. फिर आपने क्या करना है, हर को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है. 1 को मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क से तो नहीं कर सकते, इसका मतलब 0 है, तो इसलिए एग्जामिनर ने इसको कंसिडर नहीं किया. 2 इंटू 2, ये यहाँ लिखा हुआ है नीचे 2 इंटू 2. फिर 3 इंटू 8, यह लिखा है 3 इंटू 8. तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई एवरी डिजिट बाय द नंबर रिटन ऑन द टॉप. तो उसको पोजीशन को डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें और सबको प्लस कर लें. ऐड ऑल द प्रोडक्ट्स. तो आपने मल्टीप्लाई किया और ऐड किया सारे प्रोडक्ट्स को, तो आंसर आया 98. तो फिर आप क्या करें, 98 को 8 से 98 को 11 से डिवाइड करें. 98 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 था 88, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 10. तो ये रिमाइंडर आप ऑब्टेन कर लें. रिमाइंडर आपने ऑब्टेन किया. फिर आप 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 1. ये जो 1 है इसी को ही चेक डिजिट कहते हैं. दिस 1 इज अ चेक डिजिट. और ये चेक डिजिट 1 जो है एंड में जाके वो जो नंबर ऊपर आपको प्रोवाइड किया गया था, ये वाला नंबर, यही नंबर है. इसमें नंबर दोबारा यहाँ कॉपी किया हुआ है और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने ये नंबर लिखना है 1, जो चेक डिजिट आपने कैलकुलेट किया. मैं फिर से बताता हूँ. I said to calculate the check digit, you follow example number 1. A ISBN number is provided, so you can write it down. Right side says start करें, assign the position. Position always begins from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, goes like that. और फिर आपने पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ. Add up all the products, you get the total. Total 98 आ गया है. Then you divide it by 11. Why 11 always? ये मॉड्यूलो 11 मेथड है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, इंटरनेशनल मेथड है. इसको मॉड्यूलस 11 भी कहते हैं. तो आपके एग्जाम में भी एग्जामिनर इसको कहेगा मॉड्यूलो 11. अगर वो बोले सपोज मॉड्यूलो 7 यूज करो, उसका खुद का बनाया हुआ मेथड हो मॉड्यूलो 7, तो फिर इसका मतलब है आप 7 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 11 से ना करें और रिमाइंडर ऑब्टेन कर लें. ठीक है. तो यहाँ मॉड्यूल 11 है, तो इसलिए हमने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 10. तो रिमाइंडर को आपने माइनस किया तो नंबर आया 1. तो जो 1 है वो आपने यहाँ पे लिखना है एंड में, ISBN नंबर जहाँ क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ लिखना है. ये बात सबको समझ आ गया? हाउ डू यू कैलकुलेट द चेक डिजिट? Yes, sir. जी सर. जब सर वेरी ये गिवन होता है या फिर याद करना है? नहीं गिवन होता है, गिवन होता होता है. है. हाँ, और हो फॉर्मूला सकता है पूरा लिखा हो. पूरा लिखा होगा, और हो अच्छा. सकता है एग्जाम वाले दिन एग्जामिनर इसको स्लाइडली चेंज कर दे. फिर उस वक्त आप वो ना करें कि सर अकील ने पढ़ाया था वो मेथड यूज करें. हो सकता है वो पोजीशन यहाँ से 1 डाले या इसको 2 बोले, इसको 3 पोजीशन बोल दे और फिर 10 पोजीशन आखिरी वाले को बोले. तो फिर अगर एग्जामिनर ने पोजीशन ऐसे डाले होंगे तो आप भी वही पोजीशन नंबर यूज करना पेपर में. तो ये एग्जाम्पल 1 थी. एग्जाम्पल 2 में हमने करेक्टनेस चेक करनी होती है. जो एग्जाम्पल 1 है ऐसा ही मेथड एग्जाम्पल 2 का, बस एक स्टेप का फर्क आ जाता है. अब यहाँ पर एक नंबर गिवन है और इसके एंड में ऑलरेडी चेक डिजिट है x. अब हमें ये मालूम करना है कि ये चेक डिजिट की करेक्टनेस चेक करनी है कि ये ठीक है या गलत है, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट. तो हमें रिकैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? यू राइट दिस नंबर एंड यू असाइन द पोजीशन. और याद रहे आपको एग्जाम में लिखा होता है कि जो x है, रिकॉल दैट x इज इक्वल टू 10. अब क्या करें, आप हर नंबर को उसके पोजीशन से मल्टीप्लाई करें. यहां तक तो वही बात है जो पहले की थी, और इनके प्रोडक्ट को ऐड करें तो आ गया 132. फिर 11 से इसको डिवाइड करें 132 को, तो 11 12 132, रिमाइंडर आया 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो इसका मतलब है चेक डिजिट आपका बिल्कुल ठीक है, यानी ये जो x है ये बिल्कुल ठीक है. अगर ये रिमाइंडर 1 नहीं आता तो इसका मतलब है वो गलत होता. इसमें एक स्टेप नहीं है जो ऊपर था, वो कौन सा है? What step is missing in the example number 2?
आप लोगों को शायद ठीक से दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल में। जस्ट सेकेंड, मैं आपको ये भेज भी देता हूँ। मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ आपको। जो स्टेप आपको चेंज नजर आया, लास्ट टाइम हमने पोजीशन से मल्टीप्लाई किया था, ऐड किया था, टोटल किया था, डिवाइड किया था, फिर रिमाइंडर आया था, फिर रिमाइंडर को माइनस किया था। ये वाला स्टेप माइनस जो किया था, ये वाला स्टेप, ये नीचे नहीं होता। यहाँ माइनस नहीं करना है, नो माइनस। यहाँ सिर्फ डिवीजन तक जाते हैं, जो रिमाइंडर आता है बस यही डिसाइड हो जाता है कि ठीक है या गलत है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? Yes, sir. ओके। सर माइनस कहाँ हो रहा है यहाँ था ना, एग्जाम्पल टू? 98 को डिवाइड किया था 11 से, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 10 आया था, 10 को माइनस किया था हमने 11 में से, तो 1 आया था ना। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप भी था ना यहाँ पे। हाँ अच्छा। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप इधर नहीं है, इधर सिर्फ डिवीजन करते हैं और फैसला हो जाता है। अगर 0 आया तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है, अब क्या सीन है आगे? एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई ये चेक डिजिट आपको कैलकुलेट करना तो आ गया, मगर ये बताओ ये चेक डिजिट कौन से एरर पकड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स आर डिटेक्टेड। तो अगर नंबर कभी ऐसा हो, चेक डिजिट ये प्रोडक्ट्स पे होता है, जैसे आप जाते हैं इम्तियाज सुपरमार्केट, नाइस सुपरमार्केट, तो प्रोडक्ट पे बारकोड होता है, उसमें नंबर। कभी अगर नंबर जैसे कोई गलत नंबर प्रिंट हो गया हो, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो चेक डिजिट से पकड़ा जाता है। या नंबर फ्लिप हो गया हो, जैसे यहाँ 0 था, यहाँ 2 था, और 2 इधर आ गया और 0 उधर चला गया, फ्लिप हो गए, तो ये फ्लिप को भी पकड़ लेता है। या नंबर कंप्लीटली मिसिंग हो, तो मिसिंग नंबर को भी। मिसिंग नंबर्स एरर्स आर कॉट, चेंज नंबर्स एरर्स आर कॉट, एंड दूसरा क्या बताया था मैंने? मिसिंग, चेंज और रॉन्ग नंबर्स आर कॉट। ठीक है, तो ये एग्जामिनर आपको जो है कहता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। तो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, अब आपको ये समझ आएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ द बारकोड स्कैनिंग ऑपरेट्स द चेक फॉर एरर। चेक डिजिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम यूजिंग द बारकोड डेटा, यानी जो ओरिजिनल डेटा होता है उसी को लेके कैलकुलेट करते हैं। कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? हर मेथड एल्गोरिथम कहलाता है, बट विच मेथड? मॉड्यूलर 11 या मॉड्यूलस 11 भी कहते हैं। एडेड टू द बारकोड, और इसको हम अप्लाई करते हैं बारकोड पे। व्हेन आफ्टर द बारकोड इज स्कैन, जब बारकोड स्कैन हो जाता है, जो चेक डिजिट को दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं और इसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। और जो बारकोड पे प्रिंट हुआ हुआ होता है नंबर, उसको मैच करते हैं जो कंप्यूटर पे चेक डिजिट से नंबर आते हैं उसके साथ। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो पता लग जाता है जी स्कैनिंग एरर है, प्रॉब्लम है, और वो नंबर मिसिंग है या रॉन्ग नंबर है या मिसप्रिंटेड है। सही है, तो पता लग जाता है। गॉट इट? जी सर। मेरे ख्याल में इट्स अफ्तार टाइम, डू वी हैव मोर टाइम? कब तक का टाइम था आज क्लास का? 6-5 समीर। 6-5 था शायद। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर एक्सप्लेनेशन वाला होगा तो फिर मसला है। After a barcode is scanned, the data is sent to the stock control system to update the stock value stored for that product. The data is sent to the stock control system using serial simplex data transmission. एग्जामिनर चला गया नेटवर्क के चैप्टर पे। जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा हम भेजते हैं, तो एग्जामिनर कह रहे हैं सीरियल। सीरियल का मतलब होता था एक एक बिट, यानी 0 और 1 एक एक नंबर को सेपरेटली भेजेंगे। पैरेलल का मतलब होता है 8 बिट एक साथ जाते थे। एक तो ये होता था सीरियल और पैरेलल। सिंप्लेक्स क्या होता था? सिंप्लेक्स होता था 1 वे। फिर एक होता था 2 वे, जिसको हम कहते थे सिंप्लेक्स, और डुप्लेक्स। डुप्लेक्स तो 2 वे होता था साइमल्टेनियसली। एक होता था हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता था जो 2 वे हो बट नॉट साइमल्टेनियसली, 1 बाय 1, जैसे वॉकी टॉकी यूज करते हैं, हाय ओवर टू यू, फिर आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू ओवर टू यू, तो वो हाफ डुप्लेक्स होता है। 2 वे होता है मगर एक साथ नहीं, अलग अलग वक्त में। और जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो उसको हम फुल डुप्लेक्स भी कहते हैं और डुप्लेक्स भी कहते हैं। तो इस वक्त एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं सीरियल और सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है
वन वे। सीरियल का मतलब है बिट बाय बिट। अब सवाल फिर से रीड करो, समझ आना चाहिए। डेटा कैसे सेंड होगा? अगर तो सीरियल हो और सिंप्लेक्स हो, तो सीरियल में बिट्स आर सेंट वन एट अ टाइम, एक एक बिट जाएगी। सिंगल वायर से जाती है। सीरियल याद रखो सिंगल वायर से होता है। पैरेलल जो होता है ना वो मल्टीपल वायर से होता है। जैसे बहुत सारे वायर्स हो, हर वायर से अलग डेटा जा रहा है, ये सारा डेटा एक साथ ट्रांसफर होगा तो ये पैरेलल कहलाता है। बहुत सारे वायर से इसमें जल्दी डेटा ट्रांसफर होगा। मगर डेटा के मर्डल्ड मिक्स होने का इसमें चांस होता है। इसमें डेटा मिक्स हो सकता है, मर्डल्ड हो सकता है। जब एक वायर से डेटा जाता है तो मिक्स नहीं होता है। सही है। So data is sent in one direction only. Do you understand this part also? जी सर। तो उसके बाद explain why serial simplex is the most appropriate method. सीरियल में अभी मैंने बताया था मिक्स नहीं होता है। फॉर डेटा ट्रांसमिशन फॉर दिस पर्पस। तो स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है मे बी फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है वहाँ सीरियल फॉलो करते हैं। तो ये पैरेलल वाला कहाँ फॉलो होता है? जब आप एक कंप्यूटर से प्रिंटर को डेटा भेजते हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस पे। तो प्रिंटर तो आपके कंप्यूटर के साथ ही रखा होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि कराची में कंप्यूटर होगा तो हैदराबाद में प्रिंटर होगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो ट्रांसमिशन होती है वो पैरेलल होती है। लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ट्रांसमिशन होती है वो सीरियल होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली होती है। तो वो स्टॉक कंट्रोलिंग हो रही है कि बार कोड रीड करते हैं और फिर वहां से सर्वर पे डेटा ट्रांसफर होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस है। पैरेलल शुड नॉट बी यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस। सीरियल इज मोर रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। डेटा डज नॉट नीड टू बी सेंड क्विकली। डेटा पहले स्कैन होगा, फिर चेक डिजिट कैलकुलेट होगा, फिर जाएगा। द इंक्रीज स्पीड ऑफ द पैरेलल इज नॉट नीडेड। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज सेंट। एक एक बिट करके जाएगा। द बिट्स आर सेंट एंड अराइव्ड इन ऑर्डर। जब एक एक बिट जाती है, पहले ये जाएगी तो यहाँ जीरो पहले पहुंचेगा, फिर इसके पीछे वन आएगी तो फिर वन आ जाएगा इधर भी। तो जिस सीक्वेंस में आप बिट भेजेंगे उसी सीक्वेंस पे दूसरे एंड पे रिसीव होगी। मिक्स नहीं होंगी मतलब आपस में मिक्स नहीं होंगी। मिक्स नहीं होंगी तो कॉलिजन नहीं होगा। देयर विल बी लेस इंटरफेरेंस एंड क्रॉस टॉक ड्यू टू अ सिंगल वायर। तो कोई डिस्टॉर्शन, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। देयर विल बी फ्यूअर एरर्स, एरर्स कम हो जाएंगे। नो नीड फॉर अ रिप्लाई और रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। ये वन वे होता है। जैसे कंप्यूटर से प्रिंटर को डेटा जा रहा है, वन वे है, तो प्रिंटर तो रिप्लाई नहीं करता। तो इसी तरह जब हम बारकोड से रीड करते हैं तो कंप्यूटर में डेटा जाता है तो उसमें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स इज नॉट नेसेसरी एज ओनली वन वे ट्रांसमिशन नीडेड। तो वन वे चाहिए तो वो वन वे में हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स नहीं है, सिंप्लेक्स काफी है इसमें। सिंप्लेक्स सीरियल, सिंप्लेक्स वन वे होती है। वन वे है तो इसलिए इसमें हाफ डुप्लेक्स और नॉन फुल डुप्लेक्स की जरूरत भी नहीं है, नॉट नेसेसरी। गॉट इट? जी सर। Okay. The data is checked for errors after it has been transmitted to the stock control system. Give two error detection method that could be used for this purpose. कौन से एरर्स को ये पकड़ सकता है? तो इंटरनेट पे जब हम डेटा भेजते हैं तो पैरिटी सिस्टम यूज होता है। मैंने बताया था पैरिटी सिस्टम यूज होता है, चेकसम यूज होता है, एकोइंग बैक यूज होता है, या ARQ यूज होता है। ये चार मेथड है जो डेटा के ट्रांसमिशन के टाइम पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वेरिफिकेशन मेथड्स हैं। These are the verification methods used in data transmission। डेटा एंट्री के टाइम पे नहीं, डेटा एंट्री के टाइम पे जो यूज होते हैं वो तो वैलिडेशन रूल्स हैं। वो लुकअप चेक है, लेन चेक है, साइज चेक है, फॉर्मेट चेक है। एग्जामिनर इसी में घुमाता है। जब ये पूछे डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग और सेंडिंग और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो एरर डिटेक्शन कैसे होगी? ये चार मेथड है। ये चार मेथड है, पैरिटी 1, चेकसम 2, एको चेक 3, ARQ 4। ARQ बाय द वे मोबाइल के लिए होता है, फोन के लिए होता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, SMS पहुंचा है या नहीं पहुंचा, अगर नहीं पहुंचा तो वो दोबारा से भेजता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट होता है, वुड सेंड इट अगेन। ऑर्डर इवन पैरिटी, चेकसम, एको बैक। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम है
तो फिर मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ। वैसे ये मैंने आपको समझाए थे, आप उसकी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। आपको याद है कि नहीं? थोड़ा सा यार। थोड़ा सा याद है। चलो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से आपको समझाने की। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब डेटा भेजते हैं, ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है। यहाँ से डेटा भेजें हाई, तो ये इधर आएगा, और फिर ये वाला कंप्यूटर दोबारा भेजेगा इसको हाई। तो ये ओल्ड मैसेज था और ये न्यूली रिसीव्ड है, अभी जो मिला है, ये दोनों को मैच करेगा। और ये आर दीज टू सेम? यस। इसका मतलब है नो चेंज केम। इसका मतलब है डेटा सही रिसीव हुआ है डेस्टिनेशन पे। सही है। इसको कहते हैं echoing back। फिर इसमें एक प्रॉब्लम भी, एक तो ये बात याद रखो, नो मेथड इज 100% एक्यूरेट। इन ऑल मेथड देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर हैकर क्या कर सकता है, जब डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डेटा लेकर हैकर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो इधर मिलेगा बाय, और वापस आते में वो बाय को वापस से हैकर क्या बना देगा, हाई। तो इधर मिल जाएगा हाई। ये कंपेयर करेगा, उसको मिलेगा ट्रू। ये समझेगा डेटा सही पहुंचा है, जबकि डेटा तो सही पहुंचा ही नहीं है। तो ये हैकर इस तरह के काम कर सकता है। So this can be a problem in echoing back if hacker is sitting in between and altering the content. So data can still be hacked. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेथड है क्या echoing back. One message is sent to the destination. Destination machine will send it back to the source machine. Source machine will make the comparison whether the same data received or not. So इसमें एक मैसेज 2 बार रिसीव होता है, 2 बार भेजा जाता है, तो थोड़ा लॉन्ग रूट हो जाता है, डबल ट्रांसमिशन होती है, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन सिंपल मेथड है, इसको कहते हैं गोइंग बैक। एक मेथड ये था, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, वो कौन सा है, वो है चेकसम वाला। चेकसम वाला मेथड कौन सा है, अगर मैं ये डेटा भेज रहा हूँ, ये बाइनरी के नंबर्स हैं जो मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेंडिंग दिस डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो हम क्या करेंगे, जब डेटा भेजेंगे तो इसका टोटल साथ भेजेंगे। ये पैकेट कहलाता है, दिस थिंग द ऑरेंज कलर, सेट ऑफ बिट्स आर कॉल्ड पैकेट्स। तो ये एक सिंगल पैकेट है। इस पैकेट का टोटल क्या है, इसका डिनरी कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, 21। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ भी कर लें, कैलकुलेशन डन हियर, एंड इसकी रिकैलकुलेशन हम कर ले दूसरे एंड पर भी। यही हम रिकैलकुलेट कर लें जब ये रिसीव हो, तो रिकैलकुलेशन कर लें। अगर 21 यहाँ पर भी आंसर आया है, 21 यहाँ पर भी आंसर आया है, इसका मतलब है सही डेटा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऑल्टर नहीं हुआ है। इसको कहते हैं चेक सम मेथड। चेक द सम, दिस मेथड इज कॉल्ड चेक सम। एक और मेथड था जो कहलाता है पैरिटी, एंड व्हाट वाज दैट, पैरिटी में सेंडर एंड रिसीवर बोथ, इवन और even or add parity, sender and receiver both of them should agree to that method first। दोनों को पता होना चाहिए कि क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो वसील साहब और अकील साहब के दरमियान डील हो गई है कि हम जो मेथड फॉलो करेंगे उसमें जो पैरिटी यूज होगी उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, और हम जो पैरिटी यूज करेंगे वो कौन सी है, वो इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ वंस को काउंट करो, दे हैव टू बी इवन। काउंट करें, इवन नहीं है, 3 है, 3 तो इवन नंबर नहीं होता, तो आप इवन बनाएं इसको बाय राइटिंग 1 इन दिस बॉक्स। आप इवन बनाएं और फिर भेजें। फिर दूसरे एंड पे भी ये चेक होगा इवन है कि नहीं है। अगर यहाँ पहुंचा, अगर इवन नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम है। इस तरह दोबारा से चेक करें इवन पैरिटी। अब क्या आनी चाहिए पैरिटी में, वी आर यूजिंग इवन मेथड, व्हाट टू राइट हियर, 0 0, क्योंकि ये ऑलरेडी इवन है। यहाँ पे आएगा तो ये रीचेक करेगा। इसी तरह अगर ये ऑड पैरिटी होता तो सेम रूल्स आर अप्लाइड। इसको चेक करें कि ये ऑड है कि नहीं है, नंबर ऑफ वन हैव टू बी ऑड, ये ऑड नहीं है, ऑड नहीं है तो बनाओ ऑड बाय राइटिंग 1। तो आपने ऑड बनाना पड़ेगा। अब ये 1 5 हो गए, अब ठीक है, फिर आप भेज दें।
और दूसरे एंड पे ये रीचेक होगा। इसी तरह से फिर से चेक करो, फिर से चेक करो how many now what should be the parity here? 1 and then this can be rechecked at the other end when it is received। तो ये पैरिटी थी। फिर एक पैरिटी और भी थी जो कि था डबल पैरिटी, जो कि था डबल पैरिटी। और वो क्या था? Let me see। हाँ, कौन सा? This one was it। Look at this table here। इसमें आप चेक करें नंबर ऑफ वंस, 1 है, 2 है, 3 है और फिर यहाँ 4 है, 4 वंस। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ वन है, इसलिए यहाँ पे ये पैरिटी बॉक्स, ये नीचे वाला बॉक्स जो है ये पैरिटी का है। आप वर्टिकल पैरिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ये पैरिटी कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे पैरिटी ठीक कैलकुलेट हुआ है 0, यहाँ पे पैरिटी ठीक कैलकुलेट हुआ है 1। नंबर ऑफ वन यहाँ कितने? 1 2 3 4 थे, टोटल 4 वन थे। यहाँ कितने थे? 3 and 3 6 वन थे। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? इवन पैरिटी यूज हो रहा है। अब इसको यहाँ चेक करें, इस बिट नंबर 5 में चेक करो, 1 2 3 4 5 और ये 0 है, इसको 1 होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये गलत है, ये पैरिटी गलत है। जब आपने चेक कर लिया, आपने रियलाइज किया कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम है बिट नंबर 5 में। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल भी चेक करें, इसी तरह आप यहाँ चेक करें, 1 2 3 4 5 6, ये पैरिटी है। पैरिटी रो वाइज कैलकुलेट करें तो ये ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये वाली रो का चेक करो तो 1 2 3, तो इसको तो होना चाहिए था 1, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ये हमने दूसरी गलती पकड़ ली। द सेकंड मिस्टेक दैट वी हैव कॉट वो यहाँ पर है बाइट नंबर 8 में। और कहाँ थी मिस्टेक? बिट नंबर 8 में। अब एग्जामिनर को हमें बताना होता है कौन से कॉलम में प्रॉब्लम है, तो आप लिखोगे बिट 5। कौन सी रॉ पे प्रॉब्लम है, तो आप लिखोगे बाइट नंबर 8 में। अब एग्जामिनर पूछेगा वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम है, तो आपने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, दिस इज द प्लेस वेयर द प्रॉब्लम है। फिर एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इट शुड हैव बीन। तो ये नंबर एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये 1 नहीं होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन 0, इसको 0 होना चाहिए था। तो आपको आंसर इस तरह देना है, आपको आंसर इस तरह देना है कि बाइट नंबर 8 में प्रॉब्लम है, बिट नंबर 5 में प्रॉब्लम है, और नंबर जो है 1 है, 1 शुड नॉट बी देयर, इसकी जगह 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको जी। पढ़ा के गया था, और मैंने आपको अभी जो है ये चेक कराया, रिवीजन भी कराया है साथ साथ, आपको खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, रिवीजन भी कराया है। तो ये हम अभी अल्लाह अल्लाह करके क्वेश्चन 5 तक पहुंचे हैं। सो लेट्स एंड इट हियर। अभी इसमें एक क्लास और लगेगी इस पेपर को कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं जब समझा रहा होता हूँ तो डिटेल में जा रहा होता है, दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम। तो इस तरह आप मेरे साथ 1-2 पेपर सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको काम दूंगा, फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल फाइन। फिर आप A स्टार स्टूडेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कह रहा है डेटा इज चेक फॉर एरर्स आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसमिटेड। तो ये 4 मेथड थे तो हमने देखे, और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। हाफिज।